عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ اب اس مشن کی تمام تر ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے شنکر، اور ہم نے اسے ہر قیمت پر کامیاب کرنا ہے، مادام ریکھا نے شنکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، شنکر نے جواب دیا۔ تمہارے پاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ مادام ریکھا نے کہا۔ انہوں نے فوری طور پر کاٹری سے سرحد پار کرنے کا آئیڈیا شاید ڈراپ کر دیا ہے، البتہ کل صبح شاید وہ سرحد کراس کریں، شنکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے، ہمیں اس دوران بانڈا پہنچنے کا وقت مل جائے گا، مادام ریکھا نے کہا۔ مادام، میرا خیال ہے کہ ہم کاٹری میں ہی ان پر ہاتھ ڈال دیں، شنکر نے کہا تو مادام ریکھا بے اختیار اچھل پڑی۔ کاٹری میں؟ وہ کیسے؟ وہ تو پاکیزیائی علاقہ ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں، یہ لوگ وہاں مطمئن ہوں گے، اس ہوٹل کو میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے جہاں یہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اس طرح یہ لوگ آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، شنکر نے کہا۔ کیا وہ مہندر سنگھ اور اس کے ساتھی یہ کام کر لیں گے؟ سوچ لو، اگر وہ لوگ ناکام ہو گئے یا وہاں عمران یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گئے تو پھر ہمارا سارا پلان ختم ہو جائے گا، پھر انہوں نے اس راستے سے داخل نہیں ہونا، مادام ریکھا نے کہا۔ میں مہندر سنگھ سے بات کر لیتا ہوں، شنکر نے کہا تو مادام ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا تو شنکر نے جیب سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، شنکر کالنگ، اوور، شنکر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، مہندر سنگھ اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور، شنکر نے کہا۔ وہ ہوٹل کے کمروں میں موجود ہیں باس، البتہ سفر کے لیے جیپ ہوٹل میں موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ فوری طور پر سرحد پار کریں گے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کل صبح تک پروگرام ملتوی کر دیا ہو، اوور، مہندر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم ان کے خلاف کام کر سکتے ہو؟ اوور، شنکر نے کہا۔ کیا کام باس؟ اوور، مہندر سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا دو، اسلحہ تو تمہیں وہاں سے مل ہی سکتا ہے، اوور، شنکر نے کہا۔ کیوں نہیں باس، یہ کام تو انتہائی آسانی سے ہو سکتا ہے، اوور، مہندر سنگھ نے کہا۔ سوچ لو، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور الٹا ان کے ہاتھ لگ جاؤ، اوور، شنکر نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ حکم تو دیں، پھر دیکھیں ہم کیسے کام کرتے ہیں، اوور، مہندر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پھر آج رات تم یہ کام کر گزرو، اوور، شنکر نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کی تعمیل ہوگی، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جیسے ہی کام مکمل ہو تم نے مجھے کال کر کے رپورٹ دینی ہے، اوور۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے مہندر سنگھ نے جواب دیا تو شنکر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر مہندر سنگھ کامیاب رہا تو ٹھیک، ورنہ ہم خود بانڈا میں ان سے نمٹ لیں گے، مادام ریکھا نے کہا۔ مجھے یقین ہے مادام کہ مہندر سنگھ یہ کام آسانی سے کر لے گا، وہ سیکرٹ سروس میں کام کرتا رہا ہے، تجربہ کار آدمی ہے، شنکر نے کہا تو مادام ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاگل رات کے وقت بھی اپنے آفس میں موجود تھا، اسے صدر صاحب نے کال کر کے اس مشن سے علیحدہ رہنے کے احکامات دے دیے تھے، اور شاگل کے پوچھنے پر صدر صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ایسا پرائم منسٹر صاحب کے اصرار پر کیا جا رہا ہے، یہ مشن پاور ایجنسی اکیلے ہی نمٹائے گی، اور پھر مجبوراً شاگل کو واپس آنا پڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شعلے سے ناچ رہے تھے، وہ بار بار مٹھیاں بھیجتا اور پھر کھول دیتا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مادام ریکھا کی اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دے۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا۔
اسے اچانک خیال آیا کہ وہ مہندر سنگھ سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پوزیشن کے بارے میں معلوم کرے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی کال کے بعد یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں نے کاٹری سے سرحد پار کرنے کا پروگرام تبدیل کر دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر پر مہندر سنگھ کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ چونکہ وہ پہلے مہندر سنگھ کو کال کر کے اس سے معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے اسے یہ فریکوینسی یاد تھی۔ ہیلو ہیلو، شاگل، چیف آف سیکرٹ سروس کالنگ، اوور۔ شاگل نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس سر، مہندر سنگھ بول رہا ہوں سر، اوور۔ تھوڑی دیر بعد مہندر سنگھ کی آواز سنائی دی۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کیا وہ سرحد پار کر گئے ہیں یا نہیں؟ اوور، شاگل نے کہا۔ او نہیں سر، کسی وجہ سے انہوں نے اپنی فوری روانگی ملتوی کر دی ہے اور شاید ان کا خیال اب کل صبح کو سرحد کراس کرنے کا ہے، لیکن یہ صبح اب ان کے لیے کبھی نہیں آئے گی سر، اوور۔ دوسری طرف سے مہندر سنگھ نے کہا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آئے گی؟ اوور۔ شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، پاور ایجنسی کی مادام ریکھا نے حکم دیا ہے کہ اس ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا دیا جائے جس ہوٹل میں یہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اور ہم نے انتہائی طاقتور میزائل اور میزائل گنوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ میزائل اور میزائل گنیں قریبی بڑے شہر سراج پور سے منگوائی جا رہی ہیں۔ 2 گھنٹے میں یہ پہنچ جائیں گی، اور پھر پچھلی رات کو جب یہ لوگ اطمینان سے سوئے ہوئے ہوں گے، اس پورے ہوٹل کو تباہ کر دیا جائے گا، اوور۔ مہندر سنگھ نے کہا، او ویری گڈ، یہ بہت اچھا اور مناسب فیصلہ ہے، لازماً ایسا کرنا، اور جب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں تو مجھے کال کر کے ضرور اطلاع دینا۔ تمہیں نہ صرف خصوصی انعام دیا جائے گا بلکہ سیکرٹ سروس میں بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا، اوور۔ شاگل نے انتہائی تحسین بھرے لہجے میں کہا، شکریہ سر، آپ واقعی قدر شناس واقع ہوئے ہیں، اوور۔ مہندر سنگھ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، ایک بات غور سے سن لو، یہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے کہیں پہلے جا کر ان کی کمروں میں موجودگی کو چیک کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا، ورنہ یہ لوگ نہ صرف غائب ہو جائیں گے بلکہ الٹا تم بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک وار کرنا، پھر یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے، اوور۔ شاگل نے کہا، یس سر، ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے کمروں میں ہی ہیں اور انہیں تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اوور۔ مہندر سنگھ نے جواب دیا، اوکے، وش یو گڈ لک، اوور۔ شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اسکیم تو شاندار ہے، لیکن کریڈٹ پاور ایجنسی کو چلا جائے گا، اور کم از کم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں چیلنج کیا ہوا ہے کہ ان کی موت میرے ہاتھوں مقدر ہے، اس لیے انہیں میرے ہاتھوں ہی مرنا چاہیے، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ نیم خوابیدہ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ واقعی ایسا تھا جیسے وہ کچی نیند سے جاگا ہو۔ شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے، پھر تم کس طرح کسی دوسرے کے پھینکے ہوئے میزائل سے ہلاک ہو سکتے ہو؟ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا عمران کہ تمہاری موت واقعی میرے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے، شاگل نے تیز تیز لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب یہ عمران خود ہی سمجھ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر نہ سمجھ سکا تو پھر اس کی قسمت، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ساتھ والے ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی زندہ بچ گئے تو وہ کل خود جا کر صدر صاحب سے اس بارے میں بات کرے گا، اور اسے یقین تھا کہ جب صدر صاحب کو معلوم ہوگا کہ پاور ایجنسی اپنے پہلے اقدام میں ہی ناکام ہو گئی ہے تو پھر یقیناً وہ اسے ہٹا کر معاملات سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیں گے۔ عمران بیڈ پر گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کے ذہن میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، اور پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران نے نظریں اٹھا کر سامنے دیوار پر لگے کلاک پر ڈالی۔
ओह, इस वक्त किसने कॉल की है? इमरान ने कहा और उठकर तेजी से फोन की तरफ बढ़ गया। नीम ख्वाबिदा अली इमरान MSc DSE ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा। शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों मुकद्दर हो चुकी है, फिर तुम किस तरह किसी दूसरे के फेंके हुए मिसाइल से हलाक हो सकते हो? इस बात को हमेशा याद रखना इमरान कि तुम्हारी मौत वाकई मेरे हाथों मुकद्दर हो चुकी है। दूसरी तरफ से शागुल ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और इसके साथ ही यकलख्त राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से रिसीवर रखा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जिस्म पर शब ख्वाबी का लिबास था। उसने जल्दी से लिबास तब्दील किया और फिर बाथरूम से बाहर आकर वो तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर गैलरी खाली पड़ी हुई थी और साथ वाला कमरा टाइगर का था, जबकि उसके बाद का कमरा जूलिया और आखिर में सालेहा का कमरा था। इमरान ने टाइगर के कमरे के बंद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। कौन है? अंदर से टाइगर की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो, इमरान ने कहा तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। आप? और इस अंदाज में इस वक्त? टाइगर ने दरवाज़ा खोलते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मास्क मेकअप करके सामान बांध लो और मेरे कमरे में आ जाओ। जल्दी करो, हमने फौरी यहाँ से निकलना है, इमरान ने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़ गया। और फिर उसने जूलिया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। कौन है? जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। इमरान, जल्दी से तैयार होकर मेरे कमरे में आ जाओ, जल्दी, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उसने सालेहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर सालेहा के पूछने पर यही जवाब दिया और फिर तेजी से मुड़कर वो वापस अपने कमरे में आ गया। उसने मास्क मेकअप करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में बैग पकड़ रखा था और उसने मास्क मेकअप किया हुआ था। क्या हुआ है बॉस? टाइगर ने अंदर दाखिल होकर हैरत भरे लहजे में कहा। जूलिया और सालेहा को आ लेने दो, फिर बात होगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो टाइगर सर हिलाकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद जूलिया और सालेहा भी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मास्क मेकअप कर लो, किसी भी लम्हे ये होटल मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है, हमने फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो जूलिया और सालेहा के साथ साथ टाइगर भी बेख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्त ज़ाया मत करो जूलिया, हमला किसी भी लम्हे हो सकता है, जल्दी करो, हमने फायर डोर से बाहर जाना है, सामने की साइड से नहीं, जल्दी करो, इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो जूलिया और सालेहा दोनों ने टाइगर से मास्क लेकर अपने चेहरों और सरों पर चढ़ाए और फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गईं। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर आईं तो उनके चेहरे और सर पर बालों का डिज़ाइन और कलर यकसर तब्दील हो चुका था। एक एक करके फायर डोर से बाहर जाओ, दाईं हाथ पर कुछ फासले पर एक गली है, वहां रुक जाना, जल्दी जाओ, मैं सबसे आखिर में आऊँगा, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो जूलिया और सालेहा कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद टाइगर भी इमरान के इशारे पर बाहर चला गया और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद इमरान कमरे से बाहर निकला और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। गली और सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन गली के कोने पर इमरान के साथी मौजूद थे। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और कुछ फासला आगे बढ़ने के बाद वो एक और छोटे से होटल के गेट की तरफ मुड़ गया। ये रेम्बो होटल था और नवाब होटल के मुकाबले ये खासा छोटा था। नवाब होटल गांव का सबसे बड़ा और महंगा होटल था। नवाब होटल 4 मंजिला था, जबकि ये 2 मंजिला होटल था। इमरान अंदर दाखिल हुआ और फिर उन्हें दूसरी मंजिल पर कमरे मिल गए और वो सब इमरान के कमरे में पहुंच गए। अब बताओ क्या हुआ है? जूलिया ने कहा तो इमरान ने शागिल की तरफ से आने वाली कॉल की तफसील बता दी। शागिल को काफिरिस्तान में बैठे बैठे कैसे इल्म हो गया कि यहाँ ये काम होने वाला है, और फिर उसने क्यों कॉल की जबकि प्लान भी उसका है? ये सब क्या है? सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं समझ गई हूँ, ये कार्रवाई पावर एजेंसी की मादाम रेखा की तरफ से हो रही होगी और शागिल नहीं चाहता कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का क्रेडिट मादाम रेखा को मिले, इसलिए उसने इमरान को कॉल करके होशियार कर दिया होगा, जूलिया ने कहा। इसका मतलब है कि अब तुम वाकई समझदार होती जा रही हो। वेरी गुड, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, इन लोगों को रोकना चाहिए,
नवाब होटल तो काफ़ी बड़ा होटल है, अगर उसे तबाह कर दिया गया तो बेशुमार अफराद हलाक हो जाएंगे। सालेहा ने कहा, उन लोगों ने सड़क पर खड़े होकर मिसाइल फायरिंग नहीं करनी, ये यकीनन किसी इमारत में छुप कर वार करेंगे और फौरी तौर पर होटल खाली भी नहीं कराया जा सकता। इमरान ने कहा, और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि दूर से खौफनाक धमाकों की मुसलसल आवाजें सुनाई देने लगी और वो सब बेख्तियार उछल कर खड़े हो गए। इमरान ने दौड़कर खिड़की खोली तो सामने नवाब होटल की 4 मंजिला बिल्डिंग आग और धुएं की लपेट में नजर आ रही थी। वेरी सैड, ये वाकई इक़दाम कत्ल है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा और वापस मुड़ गया, क्योंकि ये खौफनाक तबाही थी। बाहर अब इंसानी चीखों पुकार के साथ साथ दौड़ने भागने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। बस चंद मिनट का वक्फा पड़ा है, वरना हम वाकई गहरी नींद ही सोते रह जाते, इमरान ने कहा और सबने असबात में सर हिला दिए। आओ बाहर चले, इन धमाकों के बाद हमारा बाहर जाना ज़रूरी है, वरना यहाँ पुलिस हमें घेर लेगी। हम आए भी तो अभी हैं, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो नीचे गए तो होटल की बुकिंग पर अफरा तफरी का सा आलम था। रात की ड्यूटी पर मौजूद अफराद बाहर भागे जा रहे थे। इमरान और उसके साथी भी बाहर आ गए और फिर थोड़ी देर बाद जब धमाके खत्म हुए और हर तरफ धुआं फैला हुआ नजर आने लगा तो इमरान ने वापस चलने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद वो सब दोबारा कमरे में पहुंच चुके थे। अब हमारा काटरी से जाना फजूल है इमरान, काफिरिस्तान के नुक्ते नज़र से हम नवाब होटल की तबाही के साथ ही हलाक हो चुके हैं, इसलिए अब हम दारुल हुकूमत से फ्लाइट के जरिए काफिरिस्तान जा सकते हैं, जूलिया ने कहा। हाँ, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना होगा, क्योंकि शागिल को यकीन होगा कि हम बच गए होंगे, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। प्रेसिडेंट हाउस के मीटिंग रूम में मादाम रेखा और शागुल दोनों मौजूद थे। मादाम रेखा के चेहरे पर मसरत के तासुरात नुमाया थे, जबकि शागुल के चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो दोनों ही खामोश बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद मीटिंग रूम का खुसूसी दरवाज़ा खुला और काफिरिस्तान के सदर अंदर दाखिल हुए तो मादाम रेखा और शागुल दोनों उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में सदर को सलाम किया। बैठे, सदर ने कहा और ख़ुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। उनके कुर्सी पर बैठते ही मादाम रेखा और शागिल भी दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। मादाम रेखा, आपने रिपोर्ट दी है कि इमरान और उसके 3 साथियों को हलाक कर दिया गया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? सदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें इस बात पर खुद भी यकीन न आ रहा हो। यस सर, मादाम रेखा ने मसरत भरे लहजे में जवाब दिया। तफसील बताएं, सदर ने कहा तो मादाम रेखा ने काटरी के नवाब होटल में उनकी मौजूदगी से लेकर वहां मौजूद पावर एजेंसी के एजेंट महेंद्र सिंह और उसके साथियों की तरफ से होटल को मिसाइलों से उड़ा देने की तफसील बतानी शुरू कर दी। क्या आपने चेकिंग करा ली है? क्या वाकई ये लोग हलाक हो चुके हैं? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, किसी सूरत भी वो बच नहीं सकते थे। मेरे आदमियों ने चेकिंग कर ली थी कि ये लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सोए हुए थे। फिर होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, वहां से एक भी जिंदा आदमी नहीं निकल सका। 150-200 अफराद हलाक हुए हैं और इनमें इमरान और उसके 3 साथी भी शामिल हैं। इसलिए ये बात हतमी है कि इमरान हलाक हो चुका है, मादाम रेखा ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। मिस्टर शागिल, क्या आपने मादाम रेखा की बात सुन ली है? आप क्या कहते हैं? सदर ने शागुल से मुखातिब होकर कहा, जो इस दौरान खामोश बैठा हुआ था। जनाब, मादाम रेखा ने पहले मुझे इस बारे में इत्तला दी और सारी तफसील बताई, और मादाम रेखा ने जो कुछ कहा है उसकी तस्दीक भी कराई गई है। वहाँ नवाब होटल को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है और वाकई होटल में मौजूद कोई आदमी भी जिंदा नहीं बच सका, लेकिन अभी तक इमरान या उसके साथियों की लाशें दरियाफ्त नहीं हो सकी। शागिल ने जवाब दिया, वहाँ किसी की भी सालिम लाश नहीं मिल सकी। उनकी क्या मिलेगी? सब कुछ जलकर राख हो चुका है, मादाम रेखा ने कहा। क्या पाकिशिया से इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि क्या वाकई ये लोग हलाक हो गए हैं या नहीं, खास तौर पर इमरान? सदर ने कहा। जनाब, फौरी तौर पर तो तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी तस्दीक हो जाएगी, मादाम रेखा ने कहा। मादाम रेखा, आपका यकीन बता रहा है कि वाकई ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। यह इतना बड़ा कारनामा है कि इसकी तस्दीक होने के बाद
आपको मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। सदर ने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब। मादाम रेखा ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा, अब चूंकि इमरान खत्म हो चुका है, इसलिए अब अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने कोई कार्रवाई की भी सही तो वो इमरान के बगैर करेंगे और उनसे आसानी से निपटा जा सकता है। इसलिए अब लेबॉर्ट्री की खुसूसी हिफाजत की तो जरूरत नहीं है। अलबत्ता सीक्रेट सर्विस वहां उस वक्त तक रहेगी जब तक कि लेबॉर्ट्री में होने वाला काम मुकम्मल नहीं हो जाता। सदर ने कहा, जनाब, आपने ये मिशन मेरी एजेंसी के जिम्मे लगाया है। मादाम रेखा ने एहतजाज करते हुए कहा, आप उसे छोड़ें। आप इस इमरान की मौत की तस्दीक कराएं ताकि उसके बारे में हतमी बात मालूम हो सके। यह इस मिशन से ज्यादा अहम मिशन है। सदर ने कहा तो मादाम रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आप तस्दीक करके मुझे रिपोर्ट देंगी, फिर आपको मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड देने की सिफारिश की जाएगी। सदर ने उठते हुए कहा, यस सर। मादाम रेखा ने कहा और सदर साहब सर हिलाते हुए वापस मुड़े और खुसूसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल करो मादाम रेखा, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। शागिल ने कहा तो मादाम रेखा ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद शागिल वापस अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसने ऑफिस पहुंचते ही मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर उसने मेज पर रखा और फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, शागिल, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस कॉलिंग, ओवर। शागिल ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, माताराम अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी, माताराम, क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला, ओवर। शागिल ने बेचैन से लहजे में पूछा, यस बॉस, मैंने मालूम कर लिया है। नवाब होटल की तबाही से पहले वहां से कुछ फासले पर वाक़े रेम्बो होटल में 2 मर्द और 2 औरतों ने आकर कमरे लिए थे। उनके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही नवाब होटल तबाह हो गया। इसके बाद ये लोग सुबह होते ही वापस दारुल हुकूमत चले गए हैं। उनमें से एक का कदोकामत इमरान जैसा ही था, ओवर। माताराम ने जवाब दिया। क्या किसी ने उन्हें नवाब होटल से निकलते हुए नहीं देखा, ओवर। शागिल ने कहा, नहीं जनाब, ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सका, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ, ओवर एंड ऑल। शागिल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज़ सुनाई दी। बांडाम में कैप्टन चोपड़ा से मेरी बात कराओ, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने कहा। कैप्टन चोपड़ा लाइन पर हैं जनाब, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। कैप्टन चोपड़ा बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कैप्टन चोपड़ा की इंतहाई मुअद्दिबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने मालूम कर लिया है कि लेबॉर्ट्री कहाँ है, शागिल ने कहा। यस सर, ये लेबॉर्ट्री सेकर के खौफनाक सहरा के अंदर एक जगह रश्मा के मकाम पर है। यहाँ एक पुराना मंदिर और एक चश्मा भी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर रेत के नीचे है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कैसे मालूम हुआ है, क्या तुम वहाँ गए थे, शागिल ने हैरत भरे लहजे में कहा। बांडा में एक क्लब है जिसका नाम भी बांडा क्लब है। उसकी मालिका एक खूबसूरत लड़की है, माया देवी। उस क्लब से लेबॉर्ट्री में काम करने वालों को शराब सप्लाई की जाती है। हफ्ते में एक रोज़ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सहरा से बांडा आता है और ये सप्लाई उस हेलीकॉप्टर के जरिए होती है, कैप्टन चोपड़ा ने कहा। ठीक है, तुम वहाँ अलर्ट रहना। मैं यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने पर काम करूँगा। अगर ये यहाँ से बचकर वहाँ पहुँच गए तो फिर मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, शागिल ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। कैप्टन राजकुमार बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर इंचार्ज की मुअद्दिबाना आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार, पूरी सीक्रेट सर्विस को रेड अलर्ट कर दो।
समंदर के रास्ते और एयरपोर्ट पर उन्होंने सख्त चेकिंग करनी है। पाक एशियाई एजेंट किसी भी वक्त किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमने उनका खात्मा करना है, शागिल ने कहा। लेकिन बॉस, आपने पहले बताया था कि वो सहरा के रास्ते से सीकर पहुंचेंगे, राजकुमार ने कहा। हाँ, पहले उनका यही प्रोग्राम था, लेकिन फिर वो वापस दारुल हुकूमत चले गए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि अब वो पहले यहाँ दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, शागिल ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। माताराम ने जो रिपोर्ट दी थी उससे शागिल समझ गया था कि उसकी कॉल की वजह से इमरान और उसके साथियों ने बरवक्त होटल छोड़ दिया था। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। आप वापस क्यों आ गए इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने कहा। सारा मामला ही उलट हो गया है। मैंने तो जूलिया को इसलिए सरबराह बनाया था कि उसकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन मैंने देखा कि जूलिया उल्टा उलझ कर रह गई है। असल में ये सारा सिलसिला इसलिए गलत हो गया है कि तवील अरसे से मैं ही मिशन को लीड करता रहा हूँ, इसलिए मेरे राब्ते और ताल्लुकात ऐसे हैं कि मैं आगे बढ़ने के रास्ते बना लेता हूँ, लेकिन जूलिया हो या कोई और, उनको सिरे से इन राब्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते, इमरान ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आपने मिशन तर्क कर दिया है? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, तर्क कैसे हो सकता है? ये बताओ कि जूलिया ने तुम्हें वापसी की क्या रिपोर्ट दी है? इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने दराज खोलकर उसमें से एक कागज निकाला और इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कागज वापस मेज पर रखा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब तुम लोग इमरान की सरबराही के आदी हो चुके हो, और इसके साथ साथ चूंकि तवील अरसे से इमरान ही सरबराह चला आ रहा है, इसलिए उसने आगे बढ़ने के लिए खुसूसी राब्ते कायम कर रखे हैं, जबकि तुम पर चूंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए तुम ऐसे राब्तों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसलिए जब तुम में से किसी को सरबराह बनाया जाए तो वो 2 कदम भी नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब आइंदा इमरान को ही सरबराह बनाया जाएगा। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, अब तक जो कुछ हुआ इससे मैं भी इसी नतीजे पर पहुंची हूं जिस नतीजे पर आप पहुंचे हैं, जूलिया ने जवाब दिया। ओके, तो अब आइंदा किसी भी मिशन की सरबराही पर आप में से कोई इसरार नहीं करेगा। अलबत्ता इमरान को वार्निंग दे दी गई है कि वो अपने साथियों से भरपूर अंदाज में काम ले, इमरान ने कहा। यस सर, जूलिया ने जवाब दिया। मौजूदा मिशन बेहद अहम मिशन है और पहले ही इसमें काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है, इसलिए इमरान को इस मिशन की फौरी तकमील का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन अब टाइगर की बजाय कैप्टन शकील, तनवीर और सफदर तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम उन्हें अलर्ट कर दो, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरान का लहजा बेहद मुअद्दिबाना हो गया था। इमरान की सरबराही में सीक्रेट सर्विस सीकर में वाक़ लेबॉर्ट्री के खिलाफ मिशन मुकम्मल करने काफिरिस्तान पहुंच रही है। तुमने ये मालूम करना है कि सीकर के इलाके या उसके शहर बांडा में शागिल या मादाम रेखा का क्या सेटअप है। इमरान तुमसे ट्रांसमीटर पर खुद ही मालूम कर लेगा, लेकिन तुमने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अब आप किस रास्ते से सीकर पहुंचेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। मादाम रेखा तो मुतमईन होगी कि हम हलाक हो चुके हैं, जबकि शागिल को यकीन होगा कि हम इस होटल के तबाह होने से पहले वहां से निकल गए होंगे, इसलिए वो हर तरफ से पूरी तरह चौकन्ना होगा। जहां तक इस काटरी के रास्ते का ताल्लुक है तो मैंने इस सारे इलाके को चेक किया है, वहां हम पर हमले करने के स्कोप बेशुमार हैं।
اور ایک بار ہم الجھ گئے تو پھر ہمیں سیکر پہنچنے تک بے شمار رکاوٹیں عبور کرنا پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر طارق جس فارمولے پر کام کر رہا ہے وہ مکمل ہونے والا ہو۔ اس لیے میں نے اس بار ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں شاگل کو تصور تک نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ پاک ایشیا کا ایک سرحدی علاقہ ہے لوگل۔ وہاں سے اگر سرحد عبور کی جائے تو آگے ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جسے دھام نگر کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ بانڈا کو جاتا ہے جس کے دونوں اطراف میں ریگستان ہے۔ اس راستے پر جیپیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، اس لیے ہم اس راستے سے خاموشی سے بانڈا پہنچ جائیں گے۔ اس دوران ناٹران وہاں بانڈا میں شاگل یا مادام ریکھا کے سیٹ اپ کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوگا۔ اس طرح ہم فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے کر ان کا خاتمہ کریں گے اور پھر لیبارٹری پر پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن شرط یہ ہے عمران صاحب کہ شاگل کے مخبروں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، ورنہ یہ راستہ الٹا آپ کے لیے پھندا بن جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم بے فکر رہو، میں ایسے انتظامات کروں گا کہ انہیں اس طرف کا خیال تک نہ آئے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا اور عمران اسے اللہ حافظ کہہ کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔